Morning students, we were doing the chapter of foreign exchange rate. Already I have discussed the two situations, situation 1 and situation 2. Okay, in the situation 1 and 2 we have already discussed the impact of increase in demand and decrease in demand. Already I have discussed about the appreciation and depreciation of currency. Okay, appreciation by the name. Okay, appreciate means domestic currency's value has been increased. Okay, that is because of demand and supply also. Okay, so already we have discussed about the demand. Now I am discussing about the situation third, that is impact of increase in supply of foreign currency. Okay, so I have taken an example of, from the starting of the chapter I am taking the same example of US डॉलर. ओके, हम जो है डॉलर जो है उसको एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं. तो ये मान के चलते हैं कि फॉरेन करेंसी जो है उसकी सप्लाई बढ़ गई है. Okay, as I told you earlier, students, and I am repeating the same thing again and again, that rate of exchange, pretend rate of exchange as a price. बिकॉज अगर आप उसको प्राइस से याद कर लेते हैं तो आपको ईजी रहता है, क्योंकि समटाइम आई हैव सीन दैट स्टूडेंट में कन्फ्यूज इन कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रेट ऑफ एक्सचेंज. सो बेटर टू लर्न इट फ्रॉम prices. So prices treated as rate of exchange. So what is happening over here? Let it start. Impact of increase in supply. So what is happening? Supply is increasing of foreign currency. So whenever the prices are, whenever the supply is being increases, so what would happen? The prices remain decreases. Okay, तो prices जब decrease करते हैं, it means, or you can say that rate of exchange in a foreign exchange chapter, it means rate of exchange is decreasing. Okay, increase in supply बढ़ी तो rate of exchange कम हो गया. Let it see in this diagram. Okay, if you will see this diagram, on x-axis I have shown demand and supply of US dollar, and over axis I have shown the rate of exchange. Fine. Okay, this is the rate of exchange. So if you will see here, the rate of exchange on OQ, the rate of exchange was OR. Okay, so because of increase in supply which is from S to S1, आपका जो rate of exchange है वो कम हो गया. Earlier it was O के ऊपर कितना था? OR, and now OQ1. Okay, that is on OQ1, it has been decreased from OR to OR1. Is it clear? Okay, O के ऊपर OR है और O के 1 पर OR1 है. इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन शिफ्ट इन सप्लाई, rate of exchange has been decreasing. Okay, so initial supply was S and shift in supply S1. So ultimately whenever there would be increase in supply of foreign currency, there would be decrease in rate of exchange and there would be appreciation of domestic currency. Okay, so let us see the flow chart over here. Increase in supply of foreign currency, foreign currency की supply बढ़ गई. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग, उससे एक्सचेंज रेट कम हो गया. इट मीन्स अर्लियर इट वाज 60, नाउ इट इज 50. okay, because of increase in supply, prices और exchange rate decreases. So जिससे appreciation of domestic currency, we have already discussed the impact of appreciation and depreciation of currency. So इससे क्या हो रहा है कि domestic currency जो है वो appreciate हो गई है, हमारी currency बढ़ गई है, हमारी currency की value बढ़ गई है. Fine. Now the next situation, situation 4, impact of decrease in supply of foreign currency, that is US dollar, depreciation of domestic currency. So अगर डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब अब क्या हुआ, अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो गई है. एज आई टोल्ड यू दैट द सप्लाई एंड रेट ऑफ एक्सचेंज हैज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप. सो व्हेन द सप्लाई इज डिक्रीजिंग, prices will increases, or you can say that rate of exchange will increase. Okay, so by which the depreciation of a domestic currency, हमारी currency की value जो है वो depreciate हो जाएगी, means कम हो जाएगी. Fine. As I told you, depreciation means rise in exchange rate. Okay, let it see the diagram over here. अगर आप यहाँ देखें तो whenever the
demand is OQ1, sorry, whenever the supply is OQ1, then the rate of exchange was OR1. Okay, and when it has increasing from OQ1, okay, so it is also increasing. Okay, so that is हमारा जो rate of exchange है वो increase कर रहा है OR से OR1 की तरफ. ओके, इनिशियली इट वॉज दिस. ठीक है, OQ पर जो है आपका रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था, दैट इज OR. ओके, वेन एवर द एक्सचेंज रेट OQ इज देयर, तो रेट ऑफ एक्सचेंज कितना था OR. जब आपकी जो है सप्लाई कम हो गई, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, तो रेट ऑफ एक्सचेंज जो है वो शिफ्ट हो गया OR से OR1. Is it clear? So decrease in supply of foreign currency leads to increase in exchange rate, that is from 60 to 70. Okay, I have just pretended it कि पहले ये जो है that is 60 था, now it is 70. So decrease in supply of foreign currency will lead to exchange in rate, which will lead to depreciation of domestic currency. हमारी domestic currency की वैल्यू जो है वो डेप्रीशिएट हो जाएगी. इसका मतलब हमें ज़्यादा रुपीज़ चाहिए एक $US लेने के लिए. फाइन. Now next is as I told you, depreciation of domestic currency. ठीक है, so depreciation of domestic when demand for foreign currency rises or when supply of foreign currency. So I have just written over here to understand, to make you understand कि कब आपकी करेंसी की वैल्यू या हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है और कब एप्रीशिएट होती है. सो देर आर टू सिचुएशन जब हमारी करेंसी की वैल्यू डेप्रीशिएट होती है. व्हेन देयर वुड बी इंक्रीज इन डिमांड. ओके, जब डिमांड बढ़ती है और there would be decrease in supply. Okay, so there would be depreciation of currency. Appreciate कब होती है? Whenever there is increase in supply and decrease in demand. If you will see over here, there is a ये कम हो रहा है, this is increasing, this is increasing, this is decreasing. So depreciate कब होगी हमारी domestic currency? जब demand increase होगी या supply कम होगी of foreign currency, of foreign exchange. Appreciation when increase in supply of foreign currency or decrease in demand. Fine. Next is fixed exchange rate. As the name suggests, fixed, which is not changing. Okay, so when it is set or maintained by government at a particular level is called fixed exchange rate. Exactly, fixed exchange rate is remains same. Okay, and flexible is depend on demand and supply. Fixed is set or maintained by government. Okay, so government is taking different step. The government may set it at a level of higher or lower than equilibrium exchange rate. ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है उसे हायर लेवल पे भी रख सकती है, उसे लोअर लेवल पे भी रख सकती है. लेट इट सी व्हाट वुड हैपन व्हेन एक्सचेंज रेट इज हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. मैंने आपको पहले भी बताया है, इक्विलिब्रियम इज दिस पॉइंट where demand and supply or of foreign currency is intersecting. ठीक है, ये आपस में पॉइंट मिल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट व्हेन एक्सचेंज रेट इज हायर, एक्सचेंज रेट इज़ हायर, मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम है और एक्सचेंज रेट हमने यहाँ डिसाइड किया, इट्स हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट. इज इट क्लियर? ओके, सो लेट इट सी ओवर हियर. OX axis again we have shown supply and here we are showing the exchange rate. Okay, so if you will see over here, E is the equilibrium point. Okay, E is the equilibrium point जहाँ पर जो है आपका OR rate of exchange है. Okay, then SF जो है that is showing the supply of US dollar and this is showing the demand of US dollar. Supply and demand. OR जो है वो एक्सचेंज रेट है जहाँ पर आपका एक $US जो है वो 60 रुपीज़ में एक्सचेंज हो रहा है. इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग अगेन. आपका जो एक $US है वो 60 रुपीज़ में चेंज हो रहा है एंड गवर्नमेंट ने इसकी बजाय गवर्नमेंट ने एक्सचेंज रेट क्या रखा, OR1. दिस ओके, इट मीन्स एक $70 रुपीज़ में एक्सचेंज हो रहा है. ओके, इक्विलिब्रियम कहाँ बन रहा था, इक्विलिब्रियम इज ऑन 60 बट गवर्नमेंट हैज सेट 70. ठीक है, मतलब अबव द
हायर द इक्विलिब्रियम रेट, ठीक है। तो अब 60 to 70, तो इक्विलिब्रियम इज मेंटेनिंग ओवर हियर विच इज कॉल्ड PQ। इज इट क्लियर? इक्विलिब्रियम जो है वो 60 पर बन रहा है, बट गवर्नमेंट ने रेट सेट किया 70। So this is depreciation, and why there is a depreciation? Because of demand and supply, value of domestic currency reduces. Okay, so दिस इज डीवैल्यूएशन। क्या है डेप्रिसिएशन? तो हमें पता है, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, आई एम रिपीटिंग अगेन, फ्लेक्सिबल में दो चीज़ें आती हैं बच्चे, दैट इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इज ओवर देयर, विच इज़ बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। फिक्स्ड एक्सचेंज में आपका आता है devaluation and revaluation, which is not because of demand and supply, because of government. Okay, so let us see what is devaluation. Value of domestic currency is deliberately reduced by the government. Deliberately मतलब जानबूझकर, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो है जानबूझकर अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कर देती है। कैसे? बाय रेजिंग द एक्सचेंज रेट एंड नो रोल प्ले बाय डिमांड एंड सप्लाई। ओके, दैट मीन्स टोटल रोल इज ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का। डिमांड एंड सप्लाई आर प्लेइंग नो रोल ओवर हियर, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डेलिबरेटली रिड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, fine, by raising the exchange rate, fine. So this is called devaluation. So what is the implications of it? Okay, what is the impact of it? It is, that is devaluation. Devaluation is leads to excess supply of foreign currency. अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम कर दी। डिवैल्यूएशन मीन्स अपनी करेंसी की वैल्यू डेलिबरेटली कम करना, ठीक है। तो जिससे व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट? एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी की एक्सेस सप्लाई हो गई। इट मीन्स इफ यू विल सी हियर दिस PQ, दिस पॉइंट PQ इज योर एक्सेस सप्लाई। ओके, सो जब एक्सेस सप्लाई हुई फॉरेन करेंसी की, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर देयर वुड बी डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट। ओके, अब गवर्नमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? इट इज़ एसेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू एब्जॉर्ब दिस एक्सेस सप्लाई। ओके, अब गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सेस सप्लाई आ गई मार्केट में, मतलब मार्केट में लॉट ऑफ स्टॉक इज ओवर देयर ऑफ फॉरेन करेंसी, तो गवर्नमेंट जो है उसे परचेज करती है, परचेज बाय फॉरेन करेंसी, विच लीड्स टू इंक्रीज इन रिजर्व ऑफ फॉरेक्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इज इट क्लियर? डीवैल्यूएशन मतलब एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, जिससे एक्सचेंज रेट कम हो रहा है। अब गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी एक्सेस सप्लाई को एब्जॉर्ब करे, जो मार्केट में सप्लाई बढ़ गई है उसे। तो वो कैसे होगा? बाय परचेजिंग फॉरेन करेंसी। और जब करेंसी परचेज करेंगे, वेन एवर यू आर परचेजिंग एनीथिंग, तो क्या होता है? उसका रिजर्व बढ़ जाता है। तो सेम एज इट इज़ हैपनिंग विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रिजर्व ऑफ फॉरेक्स जो है वो बढ़ जाएगा। Okay, and last topic I am discussing, this is when exchange rate is set lower than the equilibrium exchange rate. But if one thing is clear to you, the second one is easier to learn because somewhat it is same. अब क्या हुआ? This is the point of equilibrium. Okay, exchange rate is set lower than, this is the set equilibrium, and the exchange rate is set over here lower than the equilibrium exchange rate. Okay, just check it out over here. Okay, if you will see there, OX axis over there, we are showing the supply and demand, and OY axis we are showing the exchange rate. Okay, so OR1 this is fixed by the government. government ने ये fix किया है। equilibrium तो बना 50 पर, but government कहती है कि no, वी आर नॉट एक्सचेंजिंग करेंसी ऑन 50, हम इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जो है वो 40 कर देते हैं। मतलब करेंसी को अपनी जो है वो 50 to 40 फिक्स बाय द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि अब आपको $1 लेने के लिए 40 रुपये चाहिए। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, $1 लेने के लिए जो है आपको 40 रुपीज़। इट मीन्स गवर्नमेंट ने क्या किया? डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया।
So revaluation, which is called revaluation. So when the value of domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate. अब अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम यहाँ बन रहा था, बट गवर्नमेंट ने ये रेट फिक्स किया कि 50 नहीं, हम 40 पे इसको करते हैं. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को रेज कर दिया. कैसे? एक्सचेंज रेट को कम करके. व्हाट इज द इम्प्लीकेशन? रीवैल्यूएशन विल लीड्स टू एक्सेस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी. अब जब रीवैल्यूएशन कर दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को बढ़ा दिया, रेज कर दिया. तो जब आपकी वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देयर वुड बी एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ऑफ नॉट योर करेंसी. आपकी हमारी करेंसी की डोमेस्टिक वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी. सो आरबीआई रिलीज सप्लाई फ्रॉम इट्स फॉरेन. अब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने जो रिजर्व रखा था, अब गवर्नमेंट आरबीआई जो उसे रिलीज करेगी. ओके, नॉट गवर्नमेंट, आरबीआई ओनली. देयर ओनली आरबीआई प्लेज अ रोल. आरबीआई क्या करेगी, फॉरेक्स रिजर्व को सप्लाई कर देगी ताकि वो एक्सेस डिमांड को फुलफिल कर सके. ओके, एंड अगर सपोज करिए कि गवर्नमेंट ये स्टेप, आरबीआई अगर ये स्टेप नहीं लेती है, रिलीज नहीं करती है रिजर्व, सो देयर वुड बी एमरजेंस ऑफ ब्लैक मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ डॉलर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट, अगर आप मान लीजिए एक्सेस में डिमांड हो रही है और आप सप्लाई नहीं रिलीज कर रहे हैं, आप मार्केट में चीज़ें नहीं भेज रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाट वुड हैपन, देयर वुड बी अ ब्लैक मार्केट ऑफ दैट पर्टिकुलर, बिकॉज लोगों को वो चीज़ चाहिए, तो ब्लैक मार्केटिंग होगी. इसलिए आरबीआई इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, जो गवर्नमेंट, आरबीआई के पास फॉरेक्स का पैसा है, रिजर्व है, उसे रिलीज कर देता है. दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.